जी साहब, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है सर। जी स्टार्ट करें। Bismillahirrahmanirrahim. Myself Sayyid Isaquddin Shah, and the topic of my presentation is why daydreaming pays off big. Sir, next. Summary of this presentation. In this summary, Jeffrey Colvin defines the 3M policies, values, and their impact on decision makings and value for successful business growth. He also describes the individual 3M strengths, corporate brandings, and employee satisfactions. So in this summary, basically, we will discuss the 3M policies, what is the 3M company, and what are their policies, their core values, and what is their impact on the business decisions and future business growth. Sir. Next. Introduction of 3Ms. We'll start with the introduction of 3Ms. The 3M company, formerly known as Mindstar Mining and Manufacturing Company, is an American multinational conglomerate corporation operating in the field of industry, worker safety, healthcare, and consumer goods. Basically, it's the 3M is an American-based company. Conglomerate company means different group of corporations operating in different fields as defined that in the field of industry, worker safety, healthcare, and consumer goods. It's the company found in 1902. The CEO name of this company is Mike Roman. The total estimated sale for the year, I think 2019, was $32.8 billion. 3M is committed to actively contributing to sustainable development through environmental protection, social responsibilities, and economic progress. The 3M company is contributing in the sector of environment and social responsibility and economic progress through various kinds of seminar, innovations, and awareness programs. Applying science to improve every life. It's the core main objective of the 3M company to apply the science to improve the human lives. Together with our employees, customers, partners, governments, and communities, 3M is committed to science-based collaborative approach to solving shared global challenges and improving lives. So the 3M companies is collaborated with the multinational companies or global-based organizations to solve the business challenges and to improve the human lives as well. Next, sir. Sir, next. Corporate values. Here we will discuss some corporate values of 3M corporations that the 3M corporations follow or instruct to follow the other companies who are enlisted with the 3M. Act with uncompromising honesty and integrity in doing everything we do. This is the core value of the 3M corporation, that there is no compromise on honesty and integrity of doing the business task. Satisfy our customers in innovative technologies and superior quality, values, and services. So the second core value is to satisfy the customers are using the new modern technology or prefer the superior quality of value and services. Provide our investor an attractive returns through sustainable global growth, respect our social and physical around the world. As we discussed in the introduction, the 3Ms is involved in doing in environmental sectors, doing some improvements, protection, values, and developed our employees diverse talents. As we discussed, it's a multinational company, so it works in different regions, different countries, different societies with different peoples, and in different languages. So it develops our the multi-talented, diverse talent.
the admiration of all associated with 3M worldwide. Next, sir. Take steps to prevent violation of laws of 3Ms. This is the also values those who are the companies, multinational companies who are involved or who are enlisted with the 3M corporations. The steps they have to they take the steps to prevent them the violation of what is the core values or laws of 3M organization. So detect and report violation of law and 3M principles, take prompt and appropriate action to address violations and correct process failure and that allowed the violations to occur. Ensure that everyone who report suspected violation in good faith or with cooperates in a company's investigation is protected from the retaliation. So these were the core values that 3M companies, 3M organization follows and instruct to follow those organizations or corporations they are enlisted with the 3M. Next, sir. Now the question is how to use 3M policies. What are the things that apply in using the 3M policies? 3M business conduct policies apply to employees and other acting on 3M behalf around the world. As global principles, they apply to all locations and situations where 3M business is conducted and to all companies sponsored events. The policies contains the information you need to understand your business. So the main thing is this: the 3M policies is all about the business growth, all about the business development. So any entrepreneur who want to develop or want to progress in his business can follow the 3M policies, 3M guidelines. The policies that apply to your 3M work as well. Most policies are presented in a format. So the thing is the 3M policies, the 3M corporation policies are already pre-documented and pre-formatted. So these are the feature of we can say 3M policies. Number one is a policy statement. There is a policy statement of 3M, an explanation of what the policy means. If there is an statements, and there is also the explanation is also available about the statements. So what is how can we use, what are the policies, what are the benefits or advantages of using these policies. So there are explanations also available with the statement. Examples of the situation to avoid in order to maintain compliance with the policies. Examples also mentioned with the statement. Next, sir. What 3M policies requires? What are the things that 3M policies is required? 3M supervisors, managers, they are the trained staff. They are the pre-trained staff, the supervisors, the managers, and the leaders. They are the individuals that have been trained by the 3M about their policies, about their values. So they are the responsible to train the lower management and to transfer their the skills or the techniques to the lower managements. The main we can say responsibles of 3M's successfulness are supervisors, managers, and leaders. They have the responsibilities on behalf of 3M's. Even the chief executive, chief finance officers, and the members of senior management, all those who are involved in the senior management team, they are the responsibles to explain or to ensure the values or the policies of the 3M. Ensure that everyone in your area of responsibility understand and complies with the laws and 3M policies that relates to 3M business activities. Who will ensure the above mentioned team, the chief executive officers, the finance officers, the senior management, the supervisors, the managers, they have to ensure that every area of our workmanship, our workers, they have to understand and comply with the laws and 3M policies that relate to our business activities. Create a
create a work environment in which employees and other acting on 3M's behalf understand that you have in 3M values and not merely paying lip services to the 3M commitments to doing business the right way. So these are the requirements that 3M policy require to implement the 3M policies amongst those who relates to 3M business activities. Next, sir. Features of 3M. So what are the features of 3M policies? So there are some defined features that 3M follows. Number one is teamwork. 3M policies always prefer of teamwork. Individual support. 3Ms also support the individuals by training, by conducting trainings or R&D development training programs. So leaderships also boost leadership skills, develop leadership skills, communication, conducting trainings, reward systems, rewards to their employees, to 3M employees. 3M also rewards to their employees, career management, also work on the career management growth. Next, sir. How 3M policies are administered. 3M compliance programs is administered by the Compliance and Business Conduct Department, led by Vice President, Compliance and Business Conduct. So this the program administered by the Compliance Business Conduct Department or Vice President of the Compliance and Business Conduct Departments. The Compliance and Business Conduct Departments oversees the strategies, systematics, and operational components of 3M's compliance program, design and implementation. The department also focuses implementing initiative of Business Conduct Committee in such areas as compliance policy drafting. So this in these areas, the 3M policies works in compliance, risk analysis in education sector, communication strategy, and program awareness programs. Such the 3Ms also conducting in different sectors in environment, health, education, some other sectors. They are conducting some awareness programs, training programs, coordinating of investigating and continuous process improvement. The belief and the business ethics of 3M is to improve, for continuous improvement, of doing continuous improvement. So next, 3M roles in decision making. So now, what is the role of 3M policies, values that plays important role in making business decision. So over the years, 3M top management developed a very different relationship with an organization members that the one involved at Norton. Norton was also is a multinational company, is also US based company. Before this, the 3Ms before 1902, the policies was also was admirable of Norton. But after the 3Ms established, most of the multinational companies or organizations starts to follow the 3M policies in decision making. As a result, 3M top management sees much less detecting and controlling employees' activities and more as developing their initiative and supporting their ideas. Next, sir. Senior management primary role is to create an internal environment in which people understand and value our way of operating. So it's the duty or responsibility, primary responsibility of the senior management and the internal to create such an internal environment in which the people or the worker or the followers can understand the value of operating the business operating system according to the 3M policies. Our job is one of creation and distortion, supporting individual initiative while breaking down bureaucracy and cynicism. It all depends on developing personal trust
relationship between those at the top and those at the lower class. So the main thing or the main feature of the 3M policies in decision making, that developed a personal trust between the senior management and the lower management. Building of trust, that create the building of trust between these top management and the lower level of management. The 3M 15% rule, one of the most famous corporate policy any kind anywhere, has yielded billion of revenue dollars for 3M. It's helped attract innovative, ambitious employees. 3M corporate branding as innovation company has inspired other business worldwide to the same. So these are the policies. These were the policies that inspired other organizations, other companies in decision making. So many multinational companies start following or adopting the 3M policies in their business decision making. So adopting of its clear business decision making, this was the unique feature or values, core values that many companies, multinational companies worldwide start adopting the 3M policies in their business decisions. Thank you very much for your patience. जी इसहाक, जी सर। काइंडली एक बार जरा ब्रीफली बता दें जिस तरह एक स्टोरी की तरह कि आपने जब ये पढ़ा, रीडिंग आपने की इसकी, तो फिर आपको क्या समझ आया इससे? सर ये जो है 3M कंपनीज के बारे में हमें बता रहा है कि 3M कंपनीज जो है, 3M एक मल्टीनेशनल कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है। ठीक है, ये 1902 में ये एस्टेब्लिश, ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ। तो इसमें ये है कि इसके सीईओ का नाम माइक रोमन है, और ये इसके जो है मंथली जो ईयरली जो एस्टिमेटेड सेल है जो 2019 में 32.8 बिलियन सेल थी सर। तो इसमें इसकी पॉलिसीज के बारे में, इसके कोर वैल्यूज के बारे में हमें बता रहा है कि किस तरह हम बिजनेस, जो मल्टीनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उन पॉलिसीज को अडॉप्ट करके, उन पॉलिसीज को या अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करके बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। कुछ यूनिक फीचर्स यहाँ पे टीम वर्क के हवाले से या रिवार्ड सिस्टम के हवाले से, लीडरशिप एनहांसमेंट के हवाले से, लीडरशिप ग्रोथ के हवाले से हमें बताया। तो ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं तो जिनको जो दुनिया के मल्टीनेशनल बिजनेस है, इससे पहले नॉर्टन एक कंपनी थी यूएस की, उसको फॉलो, उनकी पॉलिसीज को फॉलो करते थे। उसके बाद जो 1902 में जो है सर जी, ये जो कंपनी आई, इसकी पॉलिसीज को एडमायर किया और इनको बिजनेस डिसीजन में जो मल्टीनेशनल जो बिग कंपनीज हैं उनको अडॉप्ट करना शुरू किया। जी, और इनका जो मेजर डिसीजन था इसके अंदर वो क्या था? इसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि इनका ये मेन डिसीजन था, ये प्रॉब्लम इन्होंने कोई फेस की और उसके अगेंस्ट इन्होंने कोई डिसीजन लिया किसी सिनेरियो के ऊपर? सर इसके इनके जो मेन फीचर है वो ये है कि ये जो है एडवांस जो साइंस को यूज करते हैं। मेन बेसिक चीज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ये प्रेफर करते हैं, यूज करते हैं टू सोर्स दिस, अप्लाइंग साइंस टू इम्प्रूव एवरी लाइफ। कि मतलब इनको यूज करें, हर प्रॉब्लम को डिटेक्ट करें, या मतलब इस तरह के बिजनेस के जो बिजनेस जो फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम्स वगैरह, उनको थ्रू जो है एडवांस टेक्नोलॉजी इनको सॉल्व किया जाए। ये इनका मोटो है सर। जी, ये और किसकी प्रेजेंटेशन है ये वाली? मेरी है सर। अच्छा, मैं शेयर करता हूँ आपकी प्रेजेंटेशन, आप भी साथ प्रेजेंट कर दें। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू इसहाक। मैं स्क्रीन शेयर Thank कर you, sir. देता हूँ मैं। जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही है आयशा? सर अभी आ रही है। जी, स्टार्ट करें आप।
Assalamu alaikum. The topic of my presentation is why daydreaming pays off big. So next slide. अच्छा, सबसे पहले जो है वो हम एब्स्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे इस केस स्टडी का। 3M कंपनी है जिसके बारे में हमने जो है ना यहाँ पर डिस्कशन करनी है। उसको जो है वो कंसीडर किया जाता है एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव कंपनी। इसके पीछे जो मेजर रीज़न है वो डेफिनेटली ये तो है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना मतलब इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो है ज़्यादा करते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि ये अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम देते हैं कि वो डे ड्रीम कर सकें। वैसे तो इस कंपनी में पहले भी जो है ये पॉलिसी, ये रूल वगैरह एग्जिस्ट करता था कि जिसमें कि ये अलाउ करते थे अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो जो है कुछ टाइम स्पेंड करें अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे। लेकिन 1948 में जो है इनके सीईओ ने प्रॉपर जो है वो फॉर्मलाइज किया था इस पॉलिसी को, और इस चीज़ को फिर इंश्योर किया जाने लगा था कि हर एम्प्लॉय को जो है वो 15% टाइम अलाउ किया जाए कि वो अपने प्रोजेक्ट्स पे उसको स्पेंड करें। इसके अलावा ये है कि इस कंपनी की इनोवेशन ही की वजह से जब 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था तब भी ये कंपनी जो है वो 1000 डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च कर सकी थी। और इसकी जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि ये अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये इनकी जो पॉलिसी वो ये ज़्यादा लीडरशिप इस तरह की है जो कि कुछ हद तक अपना कंट्रोल जो है वो गिव करते हैं एम्प्लॉयज़ को जो है ना मतलब क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाने के लिए, ताकि स्पार्क कर सकें इनोवेशन और क्रिएटिविटी इन द एम्प्लॉयज़। सर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसकी हिस्ट्री ये है कि 1902 में इसको फाउंड किया गया था। 5 डिफरेंट बिजनेसमैन थे जिन्होंने मिनेसोटा विलेज में इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया था और इसको नेम किया गया था एज नॉर्थर्न मिनेसोटा माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उनको नॉलेज नहीं थी तो इस वजह से स्टार्टिंग में काफ़ी फेलियर्स फेस करने पड़े थे इनको। इन्होंने माइनिंग वगैरह का काम स्टार्ट किया था क्योंकि उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिनरल्स वगैरह पाए जाते थे, ठीक है। ये कोरंडम को जो है वो कोरंडम को जो है वो माइन करना चाह रहे थे, लेकिन ये जो है एनर्थोसाइट कोई मिनरल था उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए थे, जिसकी वजह से जो है इनको ग्राइंडिंग व्हील्स का जो काम। लाइट्स चली गई। फिर इन्होंने सैंड पेपर बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि इस कंपनी को फिर क्योंकि फाइनेंस की ज़रूरत थी तो एक न्यू इन्वेस्टर वगैरह जो है वो चाहिए था। वो फिर बाद में प्रेसिडेंट भी बन गया था इस कंपनी का। उसने इन्वेस्टमेंट की, फिर कुछ हद तक जो है ये कंपनी सर्वाइव कर रही थी, ठीक है, अच्छी तरह परफॉर्म कर रही थी। उस टाइम पे जो है मैकनाइट जो है वो 1925 में जीएम था, इनका जनरल मैनेजर था, और उसके अंडर जो है वो एक एम्प्लॉय ड्रू काम कर रहा था जिसको काफ़ी कंप्लेंट्स और काफ़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह सुनने को मिली थी कि यार टेप से रिलेटेड काफ़ी मसले चल रहे हैं कि जब उसको रिमूव किया जाता है तो वो अपने साथ पेंट्स वगैरह भी जो है ना रिमूव कर देती है, स्टिक हो जाती हैं उसके साथ। तो उसने उस टाइम पे बोला था कि मैं इस चीज़ को जो है वो चेंज करूंगा, मैं एक नई टेप ऐसी लेके आऊंगा जिसमें कि ये मसला नहीं हुआ करेगा। और उसने फिर जो है ना क्योंकि मैकनाइट ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था उसको, और उसने अपनी क्रिएटिविटी की बेस पे जो है वो मास्किंग टेप जो है वो इन्वेंट की थी, जिसको एक मेजर इनोवेशन कंसीडर किया जाता है 3M की हिस्ट्री में। नेक्स्ट। अच्छा, उस टाइम पे ना ज़्यादातर रिसर्चर्स और ज़्यादातर जो है वो लीडरशिप्स के हवाले से यही थेरीज एग्जिस्ट करती थी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन उस टाइम पे भी 3M का जो फाइंडिंग थी, उनकी अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू था, पर्सपेक्टिव था, वो यही था कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप कहीं पे इनोवेशन और क्रिएटिविटी को स्पार्क करना चाहते हो तो वहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए ये इंश्योर करते थे कि जो नॉर्मल पॉलिसी थी वो यही थी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो है वो प्रोवाइड करते थे, पर्पस देते थे एम्प्लॉयज़ को कि यार आप लोगों ने ये काम करना है। बहुत ज़्यादा टाइट डेडलाइंस नहीं रखते थे, क्योंकि जब एक एम्प्लॉय को टाइट डेडलाइंस मीट करनी होती हैं तो वो फिर सिर्फ उस रिवॉर्ड की तरफ सोच रहा होता है, वो आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचता। तो इस तरह की जो पॉलिसीज है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना उस टाइम पे इनकी एग्जिस्ट करती थी। बाद में जो है वो रिसर्चर्स ने भी इसी चीज़ को जो है ना मतलब एस्टेब्लिश किया कि वाकई जो इंडस्ट्रियल रिसर्चर्स है ना उनकी डिफरेंट ब्रीड है और उनके लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 1948 में जो है वो विलियम मैकनाइट ने फॉर्मलाइज किया था इस पॉलिसी को, और फिर 3M ने एक टेक्निकल फोरम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था 1951 में, जहाँ पे थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफरेंट रिसर्चर्स आते थे, अपना रिसर्च वर्क प्रेजेंट करते थे, उनसे क्वेश्चंस वगैरह किए जाते थे और वो फिर उस पर मजीद जो है ना वर्क करते थे। और
15% टूल चूंकि इनका जो है वो मेन जो है ना मतलब मेजर इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब इम्पोर्टेंट था, तो उसी की बेस पे इन्होंने अपनी कोर कम्पिटेंसी इन्हेंस की थी। इनोवेशन जो है वो बेसिकली इनकी कोर कम्पिटेंसी थी, और इसीलिए इन्होंने एक इनोवेशन सेंटर भी बनाया था ऑस्टिन में, जो कि खुद भी एक क्रिएटिविटी की एग्जाम्पल थी, लेकिन क्योंकि उसके क्लासेस वगैरह इस तरह के बने हुए थे रूफ पे और फ्लोर पे, और ओवरऑल एम्प्लॉयज भी जो है ना मतलब को भी अलाउ किया जाता था कि वो ब्रेक उनको दी जाती थी, वो वहाँ जाते थे, अगर रिसर्च से रिलेटेड कोई काम करना चाहते थे, कुछ भी वो मतलब सोचना चाह रहे हैं, अपने किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो वहाँ जाके वो काम कर सकते थे। ये इन्होंने स्पेशली जो है वो इस पर्पज के लिए बनाया था। नेक्स्ट सर। ओवरऑल जो बेनिफिट्स हुए थे 3M को इस रूल के, वो ये हुआ था कि एक तो बहुत सारा रेवेन्यू जो है ना ये जनरेट कर पाए थे, डिफरेंट जो है ना मतलब इनोवेशंस वगैरह को रिजल्ट किया था, डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए थे, जिसमें मेजर जो इनकी इन्होंने प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए थे उसमें स्कॉच कार्ड, फैब्रिक प्रोटेक्टर था, माइक्रोफोन था, मेडिकल टेप और पोस्टेड नोट्स थे। इसके अलावा इन्होंने डिफरेंट एम्बिशियस एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट किया। जब एम्प्लॉयज़ को इतना मोटिवेट किया जाता था तो ज़्यादा जो एम्बिशियस एम्प्लॉयज़ थे वो जो है ना मतलब आना शुरू हो गए इनके पास, ठीक है, इनोवेशन को रिजल्ट किया, क्रिएटिविटी को, और इवन जो डिफरेंट अदर बिजनेसेस है ना उनको भी इसने इंस्पायर किया। जैसे कि गूगल भी अब इस टूल को यूज कर रहे हैं 20% टूल को, वो भी अपने इंजीनियर्स वगैरह को 20% टाइम अलाउ करता है कि वो इन्वेस्ट करें वो टाइम अपने प्रोजेक्ट्स को परस्यू करने के लिए। और इवन अब डिफरेंट ऑस्ट्रेलियन सॉफ्टवेयर फर्म्स हैं और अदर स्मॉलर आउटफिट्स हैं जो कि आउटफिट कंपनीज हैं जो कि इस रूल को जो है वो कंटिन्यू कर रही हैं, इस पॉलिसी को जो है वो फॉलो कर रही हैं। थैंक यू सर। जी, किसी ने कुछ पूछना हो, कुछ कमेंट करना हो, कुछ सजेस्ट करना हो? डू यू थिंक ये 15% ये रूल जो है या 20% टाइम का जो रूल है ये लुक्रेटिव है आज के दौर में? आज के दौर में तो ये मेरे ख्याल में तो बहुत सही है, क्योंकि देखें हम लोगों की बहुत ज़्यादा काम होता है ना ऑफिस में, तो अगर आपको थोड़ा स्पेस मिल जाए ना अपने किसी मतलब कहीं और अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, बेशक थोड़ा सा वो टाइम आप कोई इंटरटेनमेंट वगैरह किसी भी इस तरह के पर्पस के लिए भी स्पेंड करो तो आप दोबारा से फ्रेश हो जाते हो और आप उस काम पे फोकस भी ज़्यादा कर सकते हो। और जो लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं वो उस टाइम में मतलब कुछ और जो है वो चीज़ सोच सकते हैं, कुछ ऐसा जो कि अच्छा हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सही हो सकता है। ये आप जॉब के ऊपर खाली बात कर रहे हो जहाँ पे आपको काम दिया जाता है? बिजनेस पर्सपेक्टिव से सर बात कर रही हूँ, लेकिन अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो ये पर्सनल ग्रोथ के लिए सही होता है ना, कि मतलब अगर आपको अगर थोड़ा आपको पर्सनल 15% टाइम टाइम मिल मिल रहा है, रहा है स्पेस जॉब के मिल रहा ऊपर, है। तो आपका नहीं ख्याल कि अब आप सोशल मीडिया के ऊपर जो है स्पेंड कर देंगी? सर वो डिपेंड करता है ना। अब देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जो है ना उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ अपने ही जो है ना काम से रिलेटेड आगे देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, और अगर सोशल मीडिया पे भी स्पेंड हो रहा है तो सर रिलैक्स करने के लिए तो टाइम चाहिए होता है ना, उसी में बंदे का माइंड रिलैक्स हो जाता है, वो फिर ज्यादा कंसंट्रेशन से अपना दूसरा काम कर सकता है जब दोबारा काम लेकिन स्टार्ट लेकिन जो करेगा। ये जो कंपनीज थी ये रिलैक्स करने के लिए तो जो है वो टाइम ही दे रही थी। क्यों एहसान नदीम, आपके ख्याल में पाकिस्तान के देखिए कॉन्टेक्स्ट में अगर एम्प्लॉयज को जो है वो टाइम दिया जाए, 15 to 20% टाइम उनका दिया जाए कि आप उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करें, तो आपके ख्याल में ये लुक्रेटिव है, पॉसिबल है? सर यहाँ पे तो नहीं देते मोस्टली, और अगर ना अगर, ही अगर दें तो आप उसको यूटिलाइज करेंगे? सर मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेंगे। वो पॉजिटिव होना एक अलग बात है, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो नहीं करते, कोई भी नहीं करता है। अगर आपके जॉब को आपको टाइम मिले तो आपका ये नहीं कि मेरा नहीं ख्याल, आपका क्या ख्याल है कि सोशल मीडिया पे आप टाइम स्पेंड करेंगे? अगर वो सुबह से ही आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसके ऊपर, तो फिर आप बहुत हुआ तो जब अपनी स्टडीज का कोई काम है आप उसकी तरफ जाएंगे। ऐसा कोई क्रिएटिव ऐसे ही है सर। प्रोजेक्ट ऐसा कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट या टास्क आपने अपने रखा हुआ है लाइफ के अंदर कि आपने सोचा कि मैंने ये काम करना है और उसके लिए आप कुछ कर रहे हो साइड बाय साइड? सर मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर आई रहे हो? डोंट नो हर कोई कर रहा होगा अगर सर। कोई ऐसा आइडिया जो मतलब चोरी ना हो सकता तो आप बता सकते हैं हमें? सर मैं एक्चुअली मैं ऑटोमेशन पे काम कर रहा हूँ। बेसिकली जो जितने मेरे टास्क हैं, जब मेरे पास काम होता है तो जो जो काम मैं डेली करता हूँ उनको ऑटोमेट कर रहा हूँ, ताकि मुझे अगेन उनसे दोबारा कुछ करने की जरूरत ना पड़े, जस्ट वन क्लिक पे वो खुद ही हो जाए। थोड़ा सा तो स्पेसिफिक होकर मैं 50% बताएंगे हो गए अगर मतलब कैसे ये कर रहे हैं ऑटोमेट, आप क्या सर। काम? जैसे
अब हमारे इंटरनल जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको उन पे ब्रीफ रिव्यू देना होता है समटाइम्स, ट्रेनिंग की जो है, मतलब क्योंकि ज़्यादातर इंफॉर्मेशन मेरे पास ही होती है, जो भी सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं, तो उनको उनमें लूप होल्स या उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं या उन पे कितना स्ट्रेस डाल सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी मेरे पास ही होती है। तो जो भी नई चीज़ एक आती है उसकी इंफॉर्मेशन होती है कि ये इतने लोग यूज़ कर सकते हैं। अब उस पे मैं मैनुअली अगर एक एक बंदे से कह के कहूँ कि यार यूज़ करके मुझे बताओ कि इस पे हमने स्ट्रेस डालना है सिंपली, तो ये पॉसिबल है भी, लेकिन स्टिल जो है इस पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और ऑल ओवर अगेन सबको बार बार कहना पड़ता है। तो सिंपली मैंने ऐसे स्क्रिप्ट लिख के रखे हुए हैं अपने पास जो वर्चुअली एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जस्ट एक क्लिक पे। वैसे तो एक सॉफ्टवेयर पे ऑल ओवर द अगेन आप पूरा दोबारा से फ्रॉम स्टेप वन जाएं और एंड तक जाएं तो वो हो जाता है, लेकिन एक क्लिक पे करना जो है ना उसे पॉसिबल नहीं होता नॉर्मली। तो मैंने स्क्रिप्ट लिख के रख लिया है कि वो स्क्रिप्ट जो है, इसे हम बेसिकली आरपीए कहते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कहते हैं इसे। तो इसमें जो है सिंपली एक रोबोट लिख के रखा हुआ है सिस्टम में, मैंने अपने में उसे सारे इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं कि तुमने ये करना है, ठीक है। तो वो सिंपली मैं उसे ओपन करता हूँ और उस जो मैंने पूरा एक कोड लिख के रखा हुआ है उसे कह देता हूँ कि आप ये कर दो, और उसको जितना टाइम चाहिए होता है वो खुद ही कर देता है। मैं ना दोबारा से, और एंड पे मुझे रिपोर्ट भी खुद ही दे देता है, यहाँ यहाँ ये इशू है। और उन रिपोर्टिंग के लिए भी, इंटेलिजेंट बनाने के लिए भी मुझे उस पर काम करना पड़ा कि मुझे बताया कि यहाँ पे ये एरर कोड है और यहाँ पे ये है, अदरवाइज वो नहीं बताता सिंपली। तो हर चीज़ को डालने के लिए तकरीबन 6 से 7 महीने मुझे लगे, और एक दो चीज़ें मैंने अभी तक की हैं। तो लेकिन वो ये जब क्या है, मेरे पास आपको एक्स्ट्रा, आपको अब टाइम मिल जाता है। जी जी, यहाँ पे मैं भी एक बात ऐड करूं, देखें अब जैसे ये पर्सनली कोई काम कर रहे हैं, तो अगर इनको ऑफिस में टाइम मिलेगा तो ये ज्यादा उस पे स्पेंड कर सकेंगे ना, टाइम फोकस कर सकेंगे। अब इसी तरह हर एम्प्लॉय हो सकता है कि मतलब क्रिएटिव ना हो या उस तरह ना किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर, लेकिन अगर उसमें से 2% 3% भी करते हैं तो कंपनी को फायदा तो होगा ना। बेनिफिट होगा तो बिल्कुल। असल में इसी तरह जो मेरे साथ बैठे हुए हैं ना हम भी हायर किए हैं, वो मेरी टीम में ही है, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो वो सिगरेट उठा के छत पे चले जाते हैं चाय लेके या फिर बाहर चले जाते हैं और बाहर खड़े रहते हैं, या कुछ खाने सर चले जाते हैं। वो नहीं करते, उन्हें मैं कहता रहता हूँ यार ये कर दो वो कर दो, लेकिन वो सर इतना ध्यान नहीं सर देते। सर जी जी साहब। सर सर जी, आपने बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान, हम पाकिस्तानियों के हवाले से अगर हमें एक्स्ट्रा टाइम मिले तो हम इसको किस तरह यूटिलाइज करेंगे। यही 3M कंपनी जो है, 3M पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, ब्लॉक 7 के लेफ्टन में इनका हेड ऑफिस है, और इनके जो है इंडस्ट्री जो है वो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में है। वहां पे इनको स्टाफ को टाइम अलाउ करते हैं सर, जो है ना, ब्रेक टाइम अलाउ करते हैं ताकि वो किसी प्रोजेक्ट पे काम करे या अपने उसको मजीद इन्हांस करे। वो क्या करते हैं सर जी, वो बाहर निकलते हैं बोर्ड बेसन में घूम फिर के, वही टाइम जो है ना स्पेंड करके वापस चले जाते हैं। कुछ लोग इनोवेटिव होते हैं, कुछ जो है टाइम स्पेंड कर लेते हैं। वेरी लॉजिकल क्वेश्चन सर, ये हम काफी चैलेंजिंग है हमारे लिए। और अगर क्या आप बनाएंगे ऐसी कोई चीज, आपको अगर आपका अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है जो आप कर रहे हो उस टाइम स्पेस के अंदर, तो आप क्या उसकी ओनरशिप, एहसानुल्लाह आप उसकी ओनरशिप देंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को जो आपको टाइम दे रही है, जो आपको टाइम दे रही है ऑर्गेनाइजेशन? अगर आपको वो अपने बिजनेस आवर्स के अंदर से आपको कुछ और देते हैं कि आप इसमें कुछ काम कर लें और वो काम अपने क्रिएटिव आइडियाज के ऊपर कर लें, तो क्या उसके ऊपर आप किसी तरह का प्रॉपर्टी राइट या इंटेलेक्चुअल राइट्स जो है वो आप उनको देंगे ऑर्गेनाइजेशन को? सर अभी इसमें दो चीजें, अगर वो मैं अपने उसके लिए कर रहा हूँ, पर्सनल गेन के लिए कर रहा हूँ, तो मैं नहीं दूंगा। हाँ, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ही कुछ कर रहा हूँ आपके तो, ख्याल में, क्योंकि आपके वो ख्याल में रिलेटेड। जो ऑर्गेनाइजेशन टाइम दे रही है जिस तरह 3M है, और वो टाइम दे के कहती जी है कि जी आपने कुछ क्रिएटिव टाइम कुछ अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं तो आप करें, और फिर वो बता भी रही हैं कि हमने इतना बेनिफिट यील्ड किया इससे, जो हमारे क्रिएटिव इनोवेटर्स थे उन्होंने जो चीजें प्रोड्यूस की हैं उनको हमने बेच के ये कमाया है और ये किया है। तो आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान में ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए लोगों को, एम्प्लॉयज को, कि आप ये काम करें और वो कुछ ऐसी चीज बना लें या डेवलप कर लें, तो क्या लेट्स से कोरोना की वैक्सीन डेवलप कर लेते हैं या कुछ इस तरह की चीज डेवलप कर लेते हैं,
तो क्या उनको पता हो कि ये मैं किसी और को बेचूंगा तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा एज कम्पेयर टू कि मैं इसको अगर अपनी जो कंपनी है इसको ये बताऊं, ये मुझे इसको कोई बेनिफिट दें, तो शायद मुझे उसमें से कुछ हिस्सा काटना पड़ेगा। तो आपका क्या ख्याल है इसमें, क्या मतलब लोग प्रीफर करते हैं हमारे यहाँ लोग? सर हमारे यहाँ लोग इसमें इस कंपनी के जो फाउंडर था उसने कुछ एनालिसिस करने के बाद डिसीजन लिया था एक फ्री शिपिंग और फ्री रिटर्न का। इनको डिफिकल्टी इसमें ये आ रही थी कि शूज़ जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको ऑनलाइन जो है आप इतना मतलब अच्छे तरीके से सेल नहीं कर सकते हो, ट्राई किए बगैर परचेज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, इसमें इनको एडवांटेज ये हुआ था कि एक तो उनको काफ़ी मतलब ईयर्स लगे थे इसका रिजल्ट आने में। दूसरा जो है कंपनी सिर्फ शूज़ नहीं सेल कर रही थी बल्कि बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस जो है प्रोवाइड कर रही थी कस्टमर्स को अपने। नेक्स्ट है ये ज़ेप्टोस कंपनी इसके बाद एक्सपेंड हो गई थी। इसको अमेज़न ने 2009 में एक्वायर कर लिया था 1.2 बिलियन डॉलर में। और उसके बाद जो इसका फाउंडर था सिनमन, उसने अप्रोच किया था एक कैपिटल प्रोवाइडर को जिसने रिसेंटली अपनी एक कंपनी सेल की थी। वो एग्री हुआ था इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद इन्होंने एक ऑफर फ्री रिटर्न पॉलिसी जो है वो अपने कस्टमर को दी थी, जिसमें उनको काफ़ी इस ऑफर से काफ़ी इनका बिजनेस एक्सपेंड हुआ था जब इन्होंने फ्री रिटर्न पॉलिसी जो है वो अपने कस्टमर्स को देना शुरू की थी। नेक्स्ट है, उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ था ये कि जो इस कंपनी को जो है फ्री शिपिंग और फ्री रिटर्न पॉलिसी जो है वही एक सिर्फ नहीं सेव कर सकती, बल्कि अपने कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होना और दूसरा एक चीज़ कि उनको ये सर्विस डोर टू डोर प्रोवाइड करना ताकि वो एक चीज़ को शूज़ को ट्राई कर सकें और देन उसको फिर रिटर्न कर दें। तो ये चीज़ उनको काफ़ी रियलाइज़ हुआ था बाद में जाके कि ये हमें इस चीज़ से बहुत फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट है, उसमें इस कंपनी के ऑनर ने और मैनेजर वगैरह ने मिलकर डिसीजन लिया था कि हम अपने कस्टमर्स को जो है ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि वो उनको घर पे जाके शूज़ ट्राई करवाएंगे ताकि वो इजीली ट्राई करके और उस पर फिर डिसाइड कर सकें और जो पेयर्स उनको पसंद आए वो रख लें और बाकी जो है वो रिटर्न कर दें। इसके बाद कंपनी को जो नेक्स्ट इसमें अचीवमेंट हुई थी वो ये कि उन्होंने पहले फ्री शिपिंग और फ्री रिटर्न पॉलिसी जो है वो देते थे कुछ टाइम तक के लिए। उसके बाद उन्होंने एक्सटेंड करके 365 डेज तक के लिए कर लिया था और उनकी सेल्स पहले जो है 1.6 मिलियन थी, देन एक्सटेंड होके 8.6 हो गई और 32 मिलियन तक गई थी और एट द एंड ऑफ द डे 1.6 बिलियन तक चली गई थी इनकी सेल। उसके बाद उन्होंने अपने कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए और अच्छी तरीके से प्रोवाइड करने के लिए कॉल सेंटर बिल्ड कर लिया था जो कि काफ़ी अच्छी तरह से बाद में चलता रहा था और एट द एंड ऑफ द डे इनको अच्छी उससे रिटर्न आना शुरू हो गया था। इसमें डिसीजन इन्होंने यही लिया था कि फ्री रिटर्न पॉलिसी और फ्री शिपिंग जो इन्होंने दी थी अपने कस्टमर्स को, उसकी वजह से इनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया था। थैंक यू सर। जी नूर, आपने जो पूरी पढ़ी रीडिंग आपने पूरी की, इसके अंदर आपको क्या समझ आया टोटल? सर इसमें यही चीज़ थी कि एक तो इसमें जो हमारे मॉडल्स हैं उनमें से एक मुझे जहाँ तक समझ आया वो गार्बेज कैन मॉडल यूज़ किया गया था क्योंकि इसमें कोई और किसी का डिसीजन नहीं लिया गया, कुछ भी नहीं। जो फाउंडर था वो ही अपने इन्वेस्टर के साथ मिलकर डिसीजन लेता रहा बस। और दूसरा ये कि सर मुझे प्रेजेंटेशन बनाने में सबा, काफ़ी वो ये गार्बेज कैन मॉडल ये होता है सबा? क्या चीज़ सर? गार्बेज कैन मॉडल क्या होता है? सर उसमें किसी से भी मतलब आप डिसीजन नहीं लेते और एक आपस में जो अथॉरिटी जिनके पास होती है वही उस चीज का डिसीजन लेते हैं। क्यों सलमान, गार्बेज कैन मॉडल यही है जो सबा बता रही हैं? सर गार्बेज कैन में जो रिसीव होते हैं सब यूजलेस होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं और होता। ये कौन सा बता रही हैं?
तो ये पावर एंड ये पॉलिटिक्स पावर बता रही वाला है था। basically। पावर एंड पॉलिटिक्स। जी सईदा नूर, ये पावर एंड पॉलिटिक्स है जी। सर बेसिकली जी इसमें लिया गार्बेज कैन ही था, उन्होंने इस पे कोई वर्किंग नहीं की थी, जस्ट उन्होंने सुना था और देन इम्प्लीमेंट कर लिया था, और उन्हें आइडिया नहीं था कि आगे फ्यूचर रिजल्ट्स इन्हें क्या मिलेंगे। तो पावर एंड पॉलिटिक्स भी था इसमें, क्योंकि दो बंदों ने डिसाइड कर लिया था, एंड देन इसके पीछे कोई वर्किंग या कोई फ्यूचर रियलिस्टिक अप्रोच नहीं थी कि आगे क्या होगा। तो गार्बेज कैन भी इसमें इम्प्लीमेंट होता नजर आता है सर। ठीक हो गया सान। अच्छा, और सबा नूर, इसके अंदर जो इनकी कॉस्ट थी, जब इन्होंने वो पूरा बढ़ा दिया, 365 डेज कर दिया, तो क्या इनकी कॉस्ट काफी इंक्रीज नहीं होगी? जी सर। तो जी क्या सर, वही क्या ये उसका क्या 1.6 क्या बिलियन तक। तो क्या हुआ था, जो इनका जो प्रॉफिट्स था वो कम हुए, ज्यादा हुए, उसको कैसे इन्होंने कंपनसेट किया था? इसके अंदर क्या किया था इन्होंने? सर इनका जो सेल्स थी और मतलब प्रॉफिट्स थे, वो तो इसमें पहले है ना कि 1.6 मिलियन तक थे, देन वो 8.6 हो गए, फिर उसके बाद 32 मिलियन, और एट द एंड जो है 1.6 बिलियन तक उनकी सेल्स चली गई हुई थी। सेल्स तो बढ़ गई उनकी, लेकिन जब उन्होंने जी 365 डेज कर दिया टाइम, आपकी उनसे रिटर्न पॉलिसी ने 365 डेज की रख दी, तो उसमें उनको कॉस्ट भी तो काफी बेयर करनी पड़ती होगी ना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी उनको बेयर करनी पड़ती होगी। प्रॉफिट्स रिड्यूस हुए थे, या उन्होंने क्या किया था? उन्होंने शीट्स के अंदर, कैश फ्लोज के अंदर कैसे उसको कंपनसेट किया था? ये क्या किया था उन्होंने? इसके अंदर कुछ बताएं आप अगर। तो सर एज सच तो इसमें कुछ ऐसा अगर मेंशन मैं नहीं 10 था, अगर अगर मैं 10 जस्ट 25% ऑफ रेवेन्यूज की बात। अगर 10 रुपए की मेरी सेल्स है जी और 8 रुपए मेरी कॉस्ट है, तो 2 रुपए मुझे बच रहे हैं। अगर मेरी सेल्स बढ़ के 20 हो गई हैं जी और मेरी कॉस्ट भी 18 पे चली गई है, तब भी मुझे 2 ही बच रहे हैं। तो इस तरह दो, इसके हाँ अंदर जी। इसमें क्या था कि सिर्फ प्रॉफिट सेम रहा था, या उन्होंने कुछ एडजस्ट किया था, कॉस्ट को किसी और अकाउंट के अंदर एडजस्ट किया था, या कुछ और? आपने जब पढ़ा, आपको क्या नजर आया इसके अंदर? प्रॉफिट्स रिड्यूस हुए, प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए, सर सिर्फ सेल्स इंक्रीज हुई, क्या हुआ था? सर सेल्स एक तो इंक्रीज हुई थी, और दूसरा जो है वो 25% ऑफ रेवेन्यू उनका मतलब चला गया था। उसके अलावा उन्होंने और कुछ इसमें मेंशन नहीं किया कि उनका जी मतलब एहसानुल्लाह, कॉस्ट के बारे में कोई बात नहीं हुई एहसानुल्लाह, इसमें। आपको याद है कुछ? एहसान की प्रेजेंटेशन से आपको कुछ याद है एहसानुल्लाह, इन्होंने कैसे कंपनसेट किया था इसको? एहसानुल्लाह, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, सॉरी सर। जी सर आ एहसानुल्लाह। रही है, जी आ रही है, जी आ जी, रही है, माशाल्लाह एहसनुल्लाह आ रही की है। नहीं थी सर ये मुझे प्रेजेंटेशन, पता आई है, थिंक। मुझे पता है आपकी प्रेजेंटेशन थी, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि उनको याद है कि नहीं याद, एहसानुल्लाह को? प्रेजेंटेशन ये एहसान नदीम की नहीं थी। जी सर, नहीं वो नाम सर, सेम है नहीं तो इसलिए जी याद जी, नहीं नहीं याद सर, आपको? याद नहीं है सर। नहीं बताएं नहीं सर। एहसान, इसको कैसे कंपनसेट किया था? इसको क्या मार्केटिंग? सर जी बेसिकली इनकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि ज़्यादातर इनके ऑर्डर जो है ना 40% तक रिटर्न हो जाते थे, जिसकी वजह से स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज हो गई थी इनकी काफ़ी ज़्यादा। तो इन्वेंट्री की वजह से तो इन कॉस्ट को कंपनसेट करने के लिए इन्होंने इससे फिर ये जो कॉस्ट थी ये इनको मार्केटिंग कॉस्ट को असाइन कर दी थी, क्योंकि ये का कंपेटिटिव एडवांटेज भी था, और बेसिक एक वजह थी इनकी गुडविल के पीछे भी इस स्टोर की, इस कंपनी के। तो इन्होंने ये वाली जो रिटर्न कॉस्ट थी उन्हें मार्केटिंग कॉस्ट को असाइन किया था सर। जी जी, ये उसके अंदर लिखा हुआ था कि आपने खुद से अज्यूम किया था? हम्म, सर ये एंड वाले पैराग्राफ में कहीं लिखा हुआ था अच्छा, लिखा मुझे हुआ था। जहाँ तक। जी ठीक है नहीं नूर। जी जी सर एज सच कोई इतना ज़्यादा मार्केटिंग वगैरह वाला मेंशन नहीं था। एक्चुअली मुझे इतना जॉब का एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, तो मैं उस चीज़ को उतना अच्छे तरीके से समझ नहीं सकी। तो एहसान ने ज़्यादा अच्छा उसको नहीं पिक नहीं नहीं किया। नहीं, एज सिर्फ सच इसमें उन्होंने इसमें कोई फिगर भी नहीं मेंशन किया, और उन्होंने इतना कोई इसमें डिटेल नहीं लिखी हुई थी मार्केटिंग वगैरह की उसमें। मार्केटिंग की डिटेल नहीं लिखी हुई उसमें नूर। उन्होंने बताया कि जी जब आपने 365 डेज का किया, तो उनकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो उसमें लिखा होगा, उन्होंने रिटर्न रेट बताया हुआ था, कुछ परसेंट बताया हुआ उन्होंने, रेवेन्यूज में जितना इंक्रीमेंट जिस तरह आपने बताया है वो लिखा हुआ वो था। तो 25%, फिर हाँ जी। उन्होंने इसको कंसीडर किया कि हम इसको जो कॉस्ट है इसको हम मार्केटिंग कॉस्ट ही कंसीडर कर लेते हैं, ये हमें कंपेटिटिव एज भी देती है और हमारी मार्केटिंग की समझ लो ये होती है। तो उन्होंने उसका अकाउंट को खाली वहां असाइन किया हुआ था, उसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जो जॉब करने या ना करने से पता लगे। बहरहाल, और फिर इसमें क्या हुआ था नूर?
सर इसके अलावा सच और कोई चीज़ नहीं थी, बस ये इम्पोर्टेंट इनके डिसीजन थे जो उन्होंने फ्री शिपिंग और फ्री रिटर्न का शुरू किया था, और बस उसके बाद जो उनकी सेल्स में इंक्रीज हुआ था, ठीक हो गया। तैयबा और एक जो उन्होंने कॉल जी, सेंटर जो है बिल्ड किया था उसमें वो चीज़ थी। इन्होंने अपने सिस्टम्स भी डेवलप किए थे, आस्ते-आस्ते इन्होंने चीज़ें खुद एक्वायर कर ली थी और खुद डेवलप कर ली थी। इवन मेरे ख्याल से कि मुझे याद पड़ता है तो ये लॉजिस्टिक्स भी इन्होंने खुद अपनी जो है वो लॉजिस्टिक कंपनी भी सर मेन थी, इन्होंने इन्होंने खुद पहले बाद में बना। लॉजिस्टिक्स अपनी बनाई थी। हाँ जी। उसके बाद इन्होंने जो है वो अपना कॉल सेंटर भी जो है वो खुद ही डेवलप कर लिया था। तो इन्होंने जो है वो इंटीग्रेशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर ली थी।